Good morning, students. Welcome to the online classes of Wonderland Public School. Class 5th, we have completed the reading of lesson number 8 in English. Also, we have completed few exercises in our book. Today, we are going to do some more exercise. Take out page number 91. Yes, rewrite each sentence beginning with as soon as. अब हमें sentences start करने हैं. Start कैसे होंगे? With beginning है with as soon as. ठीक है. तो पहला sentence देखते हैं. When I reached home, it started raining. जैसे ही मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, it started raining. अब इसमें as soon as लगाना है. As soon as मतलब जैसे ही मैं, ठीक है. As soon as I reached home, when की जगह क्या आएगा? As soon as. As soon as I reached home, it started raining. जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश चालू हो गई. ठीक है. When she saw her mother, she began to cry. जब उसने मदर को देखा वो रोने लगी. ठीक है. अब इसमें as soon as लगाएंगे when की जगह. As soon as she saw her mother, she began to cry. जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वो रोने लगी. When the bell rang, children ran for their homes. As soon as the bell rang, the children ran for their home. जैसे ही बेल बजी सभी बच्चे अपने घर के लिए भागे. Next, when the teacher came in, children became silent. As soon as the teacher came in, children became silent. बस when की जगह हमें क्या लगाना? As soon. As soon as का meaning जैसे ही. As soon as जैसे ही. और when मतलब जब. ठीक है. Write the complete sentences. What things you must or mustn't do at school. Must मतलब जो हमें करना ही है और mustn't means जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक है. बिल्कुल भी नहीं. तो write on the walls. दीवारों पे लिखना चाहिए. तो I mustn't write on the walls. मुझे बिल्कुल भी नहीं दीवारों पर लिखना चाहिए. Study for my test. टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए. I must study for my test. मुझे बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, करना ही चाहिए टेस्ट के लिए पढ़ाई. Come to class on time. Yes, I must come to class on time. Do my homework daily. I must do my homework daily. Play games in the class. क्लास के अंदर गेम्स खेलना. I mustn't play games in the class. मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता क्लास में. ठीक है. हमें okay. Next, the following pictures shows the various steps you will take to make cheese sandwich. But the pictures are not in the right order. Listen carefully and mark the right order to each picture. Okay. अब देखो यहाँ एक चीज सैंडविच बनाने की प्रोसेस दे रखी है बट प्रॉपर पिक्चर्स नहीं है. हमको बताना है पहले कौन सी पिक्चर आएगी पहले क्या स्टेप थी फिर कौन सी स्टेप आएगी. ठीक है. तो देखते हैं. सबसे पहली स्टेप bread. Take a bread and spread some butter on the bread. First step. Second step क्या थी? देखो क्या हो रहा है बटर के बाद. Grate some cheese on this bread slice. Okay. Second step में हमने चीज ग्रेट करी है. ठीक है. थर्ड स्टेप क्या हो रही है? अब चीज तो ग्रेट हो गई. थर्ड स्टेप देखो क्या हो रहा है. यहाँ तो टोमेटो आ गया है, इधर तो पूरा सैंडविच बन गया. यस, दिस इज द थर्ड स्टेप. Put some green chutney on this bread slice. Okay. फिर थर्ड स्टेप में ग्रीन चटनी लगाई हमने. फोर्थ स्टेप क्या है? चेक करो. Yes, put some tomatoes above this green chutney. फिफ्थ स्टेप है ना, cut some onions, green onions. Then sixth step, put this green onion on this slice. Okay. And seventh step, cover it with other bread. Okay, सैंडविच को हमने कवर किया. Then eighth step, cut into halves and plate it and serve it. So this is the last step. So accordingly you have to write the numbers. Move on to the next exercise. Say some following words aloud. Write the words ending in S sound. S. And S sound means S से end हो रहे. And cross the words ending in Z sound. Z. Z sound means Z. S. Z. Okay. तो स साउंड के लिए राइट एंड ज साउंड के लिए रॉन्ग.
legs, z आया, z wrong. Cuts, right? Runs, wrong. Eats, right? Balls, dolls, pears, dogs, z आ रहा है, z तो wrong. Reads, reads नहीं बोलते, reads. Builds, writes, books, s sound है तो right. Clocks, keeps, comes, z so wrong. Breaks, right. Okay, now next, write a paragraph or a short story beginning with the scene on the left and ending with the scene on the right. अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स दे रखी है, इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. देखो आप क्या दिख रहा है आपको, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वॉल्स ऑफ द रूफ, ही इज फ्लाइंग काइट, है ना, फिर वो गिर गया है एंड उसको प्लास्टर कास्ट लग गया है. तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है और एक पैराग्राफ लिखनी है. ठीक है, एक हिंट के लिए हमने एक स्टोरी लिखी है, लेकिन बट आपको ये अपने ओन वर्ड्स में कॉपी करना है. अब हमने इसको इमेजिनरी नेम दे दिया राजू, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, राजू, मोहन, श्याम, अमित, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो. राजू इज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स. राजू को क्लाइट्स उड़ाने का बहुत मजा आता था, उसको बहुत शौक था. वन डे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ हिज हाउस एंड फ्लाइंग अ काइट. एक दिन वो अपने घर की छत की वॉल्स पे काइट खड़े होके काइट उड़ रहा था. ही वॉज लुकिंग एट द काइट एंड फीलिंग वेरी हैप्पी. अब वो काइट की तरफ देख रहा था और बड़ा खुश हो रहा था. सडनली ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द वॉल. ठीक है, सडनली ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो छत पे गिर गया. लकीली ही डिडंट फेल टू द साइड ऑफ द स्ट्रीट. लकीली वो स्ट्रीट की तरफ नहीं गिरा, घर की तरफ गिरा. ओके, ही फेल टू द साइड ऑफ द रूफ, छत की तरफ गिरा. एंड ब्रोक हिज राइट आर्म एंड राइट लेग. और क्या उसने तोड़ बैठा, अपना राइट आर्म, राइट हाथ और राइट लेग, पैर, है ना. इट वॉज 3 weeks ago एंड ही इज स्टिल इन प्लास्टर कास्ट. अब उसको 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो प्लास्टर में ही है, उसकी प्लास्टर कास्ट में ही है. ओके, नेक्स्ट, द हिडन ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर बिलो, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम. अब हिडन ऑब्जेक्ट्स, आपको कुछ एक पिक्चर दे रखी है, इसमें कुछ हिडन ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई है. अब उसे आपको फाइंड आउट करना है, और फिर कुछ हिंट्स आपको दे देते हैं हम. हिडन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फिश है, हैंड, सॉक्स, रिंग, बॉल, क्राउन, कप, लैंप, अम्ब्रेला, टूथब्रश, आइसक्रीम कोन. ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट्स इस पिक्चर के अंदर है. आपको फाइंड आउट करना, कलर करना है. ठीक है, कलर हमने नहीं करे, कलर आपको करना है. देखो एग्जांपल के लिए, दिस इज फिश, ठीक है, दिस इज रिंग, दिस इज अम्ब्रेला, दिस इज बॉल, दिस इज टूथब्रश, सॉक्स, रिंग, लैंप, कप, क्राउन, हैंड, आइसक्रीम कोन. अब इनको आपको फाइंड करना, कलर करना है. मूव ऑन टू द नोटबुक्स. Write down lesson number 8. Lesson name, our bones. Question number 1, word meanings. Plaster cast. A mold made of plaster of Paris. एक ऐसा मोल्ड जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है. प्लास्टर का साँचा. Mended, repaired, ठीक करना. Mend मतलब रिपेयर करना, ठीक करना. Saggy, curving down easily under weight or pressure. झोलेदार. Saggy means झोलेदार, जिसमें थोड़ा सा ही प्रेशर या वेट डालो तो वो झूल जाता है, कर्व हो जाता है, ढीला डाला, जैसे हम बोल सकते हैं झोलेदार. Yes, now move on to the question and answers. What did Nadia love to do during the recess? Nadia loved playing on the monkey bars. recess में नदिया को क्या खेलना पसंद था? Nadia loved playing on the monkey bars. How did she break her arm? उसने अपना हाथ कैसे तोड़ लिया? She fell down from the monkey bars and broken her arm. वो monkey bar से गिर गई. She fell down from the monkey bar and broken her. Why did Nadia's teacher ring up Nadia's parents? नदिया की टीचर ने नदिया के पेरेंट्स को क्यों फोन किया? The teacher called Nadia's parents to tell them to take Nadia to hospital because she had broken her arm. नदिया की टीचर ने उसके पेरेंट्स को इसलिए फोन किया क्योंकि उन्हें बताना था कि नदिया को हॉस्पिटल ले जाइए क्योंकि उसका हाथ टूट चुका है. How did the doctor know that Nadia's arm was broken? डॉक्टर को कैसे पता कि नदिया का हाथ जो है टूटा हुआ है? The doctor knows that Nadia's arm was broken by taking an X-ray of her arm.
डॉक्टर ने नदिया के आर्म का एक्सरे लिया था, इसी से उसको पता चला कि नदिया का आर्म फ्रैक्चर्ड है या टूटा हुआ है। व्हाट डिड द डॉक्टर पुट ऑन नदियाज आर्म? डॉक्टर ने नदिया के आर्म पे क्या लगाया? द डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट ऑन नदियाज आर्म। डॉक्टर ने प्लास्टर कास्ट लगाया नदिया के आर्म पर। व्हाट एनकरेजिंग वर्ड्स डिड द डॉक्टर से टू नदिया? डॉक्टर ने नदिया से क्या अच्छे वर्ड्स कहे, एनकरेजिंग वर्ड्स, ताकि वो परेशान ना हो। He said that her arm would get better in a few days. डॉक्टर ने क्या कहा कि आपका जो आर्म है वो कुछ ही दिनों में बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। Why did Nadia take her X-ray to school? नदिया अपना एक्सरे स्कूल क्यों लेके गई? She wants to show her X-ray to her friends because वो चाहती थी कि वो अपना एक्सरे अपने दोस्तों को भी दिखाए। About how many bones does our body have? हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है? Our body have 206 बोन्स। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती है। व्हाट इज द यूज ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी? बोन्स का हमारी बॉडी में क्या यूज है? द बोन्स इन आवर बॉडी हेल्प अस टू मूव। हमारी जो बॉडी के अंदर बोन्स होती है वो हमें मूव करने में हेल्प करती है। विदाउट बोन्स आवर बॉडी वुड बी अ शेपलेस लम्प। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं होगा, ठीक है, वो गुब्बारे की जगह एक लंप जैसे रहेगी। What helps our bones to bend? हमारी बोन्स को मुड़ने में कौन हेल्प करता है? Our bones have joints. हमारी बोन्स के अंदर joints होते हैं। These joints helps the bones to bend. और यही joints हमारी बॉडी को, बोन्स को मूव करने में या बेंड करने में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। Name some parts where we have joints in our body. हमारी बॉडी में joints कहाँ कहाँ है बताओ? We have joints in our knees. हमारे घुटनों में joints है। Ankles, ठीक है, ankles मतलब हमारी एड़ी में, रिस्ट कलाइयों में, एल्बोज, ठीक है, जॉज एंड शोल्डर्स, इन सब जगह हमारे जॉइंट्स है, ठीक है। व्हाट हेल्प्स टू कीप आवर बोन स्ट्रॉन्ग? हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग कौन रखता है? गुड फूड एंड एक्सरसाइज हेल्प टू कीप आवर बोन स्ट्रॉन्ग। अच्छा खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, ठीक है, इन चीज़ों से हमारी जो बोन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा लेसन 8 एंड होता है। तो कंप्लीट योर बुक्स एंड कॉपीज। इन नेक्स्ट वीडियो या इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू English grammar. Thank you.